ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਸੋ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 95 272 95 372। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ WhatsApp ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੇ है या की? देखिए, कनाडा के ये जो रूमर्स हैं, अगर मैं बात करूं, ये हर साल फैलता है कनाडा का रूमर कि कनाडा वीज़े देने बंद कर रहा है, कनाडा इस इनटेक में कम वीज़े देगा। देखिए, हर बार, हर साल, हर ईयर में एक ही रूल एप्लीकेबल होता है। एक कोटा सिस्टम है कनाडा का भी कि उसने एक लिमिटेड अमाउंट तक ही वीज़े जो है वो इशू करने किसी भी कंट्री को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा ने वीज़ा देना बंद कर दिया है। यस, कनाडा ने अभी बहुत वीज़े दिए हैं और कनाडा अभी भी वीज़ा दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, उन्होंने वीज़ा देना बंद नहीं किए हैं। रिसेंटली मेरे पास वीज़ाज रिसीव हुए हैं कनाडा के, जो कि 6 रिफ्यूज़ल के बाद बच्चों के 10-10, 12-12 साल के गैप है, उनके वीज़ाज मेरे पास रिसीव हुए हैं। सो कनाडा वीज़ा देना तो देखो कभी नहीं बंद करेगा। सिर्फ रूमर्स जो हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? अपनी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाकर कनाडा की वेबसाइट पर जाकर प्रोसेसिंग टाइम हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि क्या हो चुका है, तो हमें पता लग जाएगा कि कनाडा वीज़ा देना नहीं बंद किया है, सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम चेंज हुआ है। ਜੀ, ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? देखिए, हर कंपनी का अलग वीजा सक्सेस जी। रेट होता है। कनाडा गवर्नमेंट का खुद का अलग वीजा सक्सेस रेट है। बट अगर मैं स्विफ्ट मूव एजुकेशन की बात करूं तो स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन का जो वीजा सक्सेस रेट है वो 97% है। और ये फिगर कोई भी पर्सन इन पर्सन आकर डायरेक्ट मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलकर देखना चाहता है, पूछना चाहता है, या ये चाहता है कि मेरी उन बच्चों से बात कराओ कि 100 में से 97 वीजा आपने कैसे लगाए, तो मैं वो भी बताने को तैयार हूं। 97% स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन का वीजा सक्सेस रेट जो है वो अभी कनाडा में चल रहा है। ये ओवरऑल है। अगर मैं बात करूं स्टडी, टूरिस्ट, स्पाउस, सुपर वीजा सभी को मिलाकर, सिर्फ इसमें स्टडी नहीं इंक्लूड, सारे वीजाज इंक्लूड है। ਜੀ, ਸੋ ਸਰ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? देखिए, कनाडा में इनटेक बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो बच्चा अप्लाई करता है वो यही सोचता है कि नेक्स्ट इनटेक के लिए उसको सीट मिल जाए। ठीक है, तो अभी मैं ऑन कैमरा बताना चाहूँगा, मेरे पास अभी फरवरी इनटेक चल रहा है, वो भी सरकारी कॉलेजेस के नाम बताऊंगा मैं। कोई प्राइवेट कॉलेज आपको नहीं बोलूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में आकर मेरे पास इनरोल हो जाएं। सरकारी कॉलेजेस में मेरे पास अभी फरवरी इनटेक चल रहा है, मेरे पास अप्रैल इनटेक चल रहा है सरकारी कॉलेजेस में सिर्फ। ठीक है जी, मेरे पास मई इनटेक है, मेरे पास जुलाई इनटेक है, मेरे पास अगस्त इनटेक है, सितंबर इनटेक है। मतलब 2024 तक के मैंने आपको इनटेक्स बता दिए कि सिर्फ और सिर्फ फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई,
अगस्त, सितंबर 6 इनटेक अगले साल के अभी मेरे पास अवेलेबल है। जो बच्चे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनका जनवरी इनटेक मिस हो गया और वो सिर्फ मई इनटेक में जा सकते हैं, वो मई इनटेक से पहले भी 2 इनटेक्स का फायदा ले सकते हैं और सरकारी कॉलेजेस में डिप्लोमा करने के लिए जा सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको मैं किसी पैकेज के अंदर फंसा दूंगा। मैं सरकारी कॉलेज में स्टेप बाय स्टेप करके आपका वीजा आपको लेकर दूंगा। फेब्रुअरी इनटेक के लिए भी अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो वो आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करे, 95 272 95 372 पर। अभी आप व्हाट्सएप करें, आपको अभी मैं सारी क्वेरीज का, क्योंकि ये नंबर पर्सनली मैं हैंडल कर रहा हूं और इस की क्वेरीज में आपको अभी के अभी व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा। और फरवरी इनटेक के लिए अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करें और मेरे ऑफिस में विजिट करें। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 5 ਬੈਂਡਸ ਹੈ, 5.5 ਬੈਂਡਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੂੰ? इसमें मेरा एक क्वेश्चन है जी। आपसे, आप 5 बैंड या 5.5 बैंड किसको कह रहे हैं, ओवरऑल या किसी एक मॉड्यूल में? किसी एक मॉड्यूल में। किसी एक मॉड्यूल जी। में ना। देखिए, अगर आपके एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, मैं एक मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा, आपके 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, आपके 3 मॉड्यूल में 5.5 है, बट ओवरऑल 6 बैंड बनते हैं। आप आइए मेरे पास, कनाडा का वीजा मैं आप बताऊंगा आपको कैसे लिया जाता है। आपके एक मॉड्यूल में 5 बैंड है, एक मॉड्यूल में 4.5 बैंड है, आप मेरे पास आए, मैं आपको कनाडा का वीजा लेकर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सक्सेस स्टोरीज शेयर कर चुका हूं। मेरे पास ये वीजाज है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है हमारी फाइलिंग प्रोसेस। देखिए, किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसका बैकएंड सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरा जो बैकएंड सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। हमने किसी भी बच्चे को फंसाने वाला काम नहीं किया कि आप आओ, पहले इनरोल हो गए, उसके बाद उनको कागजों में फंसा दिया जाए। डायरेक्ट मैं बात करूंगा बच्चे के साथ, या हमारे जो मेरे को फाउंडर है वो बच्चे के साथ बात करेंगे, जो फाइलिंग हेड है वो बच्चों के साथ बात करेंगे और वो बच्चों को सिंपली फाइलिंग बताएंगे। हमने बहुत सिंपल फाइल रखी है कि बच्चा आए कनाडा में, ये डॉक्यूमेंट है, ये तैयार करके दीजिए। हमने डेडलाइंस बांधी हुई हैं जो हम बच्चे को पहले बता देते हैं कि अगर आपने जनवरी इनटेक जाना है तो आपकी इस डेट को फाइल लग जानी चाहिए। तो इसीलिए मेरे पास वीजा सक्सेस रेट भी ज्यादा है और बच्चे वीजा भी लेकर जा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूं। मेरे पास 2 बच्चे थे जिन्होंने जाना ही जनवरी इनटेक में था और जाना ही हम्बर कॉलेज में था। वो बच्चे मेरे पास आए हम्बर कॉलेज जनवरी अप्लाई करने के लिए, जबकि हर जगह सीट खत्म हो चुकी थी। उन्होंने सितंबर में मेरे पास अप्लाई किया बच्चों ने हम्बर कॉलेज में, और 20 नवंबर हमें मेल आ गई कि 20 नवंबर तक अगर उसका वीजा अपलोड नहीं करोगे तो बच्चों को सीधा सितंबर 2024 इनटेक के लिए डेफर कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे कॉलेजेस के साथ अच्छे रिलेशन है। बच्चों का 15 नवंबर को हमने उनका वीजा लेकर, उनका स्कैन करके कॉलेज में भेजकर बच्चों को जनवरी इनटेक सिक्योर करके दिया है। अब ये जो मेरा शो देखेंगे वो कहेंगे हम्बर कॉलेज का तो ऑफर लेटर ही 2 महीने 3 महीने में आता है, आपने इतनी जल्दी कैसे मंगवा लिया? डिपेंड करता है आपके रिलेशन कैसे हैं कॉलेज वालों के साथ, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से फाइलिंग कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी फाइलिंग की एसओपी कैसी बनी है कि एम्बेसी ऑफिसर आपकी एसओपी का देख के आपको वीजा देगा। एम्बेसी ऑफिसर के पास आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रूफ नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो एक एक नंबर नहीं चेक करेगा, वो एसओपी जो आपका फेस है फाइल का वो देखकर वीजा देगा। तो हमारे पास एक्सपर्टाइज है, इसीलिए मैं अपने हर शो में बोलता हूं कि आप एक बार मेरे से मिलिए, आप मेरी फाइलिंग टीम से मिलिए। मैं फर्स्ट डे ही हर पर्सन को अपनी फाइलिंग टीम से मिलवा देता हूं। आप मेरी फाइलिंग टीम से मिलिए। फाइलिंग टीम से मिलने के बाद डिसाइड करना कि आपने स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में अपना केस अप्लाई करना है या नहीं करना है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। देखिए मैम, आप शोज करते हैं, जी। आप बहुत ऐसे पर्सन से मिलते होंगे बिल्कुल। या बच्चों के कॉल्स भी आते होंगे जो ये कहते हैं कि मैडम हमने अप्लाई तो जनवरी इनटेक के लिए किया था पर हमारा ऑफर लेटर ही नहीं आ रहा, ऑफर लेटर नहीं आ रहा, वो सितंबर हो चुका है। रीजन ये है जो आपने बात बोली है कि जाना ही हमने सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदार के पास है, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी पढ़ना नहीं है, हमारी पहली प्रायोरिटी काम करना और रिश्तेदार है। बट मैं स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना चाहता हूं कि बच्चे का इनटेक मिस ना हो।
बच्चे का जब एक इनटेक मिस होता है, वो एक इनटेक मिस नहीं होता, बच्चों के जो फादर ने या पेरेंट्स ने जो पैसा जमा किया है, हो सकता है किसी के पास अपना पैसा नहीं है, किसी ने ब्याजी पैसा उठाया है। एक इनटेक का मतलब 5 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक इनटेक का मतलब 5 महीने और पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, बट वो पैसा किसी काम का नहीं है आपके, आप ना उसे खर्च सकते हैं ना अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज और जीआईसी के लिए है। क्योंकि जब एक बच्चा कनाडा जाता है तो 18 से 20 लाख रुपए का एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का खर्चा पहले साल का आएगा ही आएगा बच्चे का, ठीक है। बट ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि आप हमारी काउंसलिंग से सेटिस्फाई होकर कॉलेज सरकारी ले रहे हैं, या तब भी आपका मन है कि नहीं मुझे इस जगह नहीं जाना, मुझे इसी जगह जाना है जहां मेरा रिश्तेदार है, तो उस केस में तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उस केस में मैं ऑफर लेटर मेरे हाथ में भी नहीं है, उस केस में बच्चे को वेट करना ही पड़ेगा। बट जहां तक वीजा की बात करूं, वीजा के लिए मैं किसी केस में डील नहीं करता, चाहे बच्चा किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। मेरा पहला जो कह सकते हैं ना कर्तव्य है हमारी कंपनी का, ठीक है, जो मोटो है मेरी कंपनी का, वो बच्चे को वीजा लेकर देना है, बच्चे का रिफ्यूजल नहीं है। रिसेंटली अभी मैं एक वीजा पोस्ट करूंगा, मैं आपको छोटी सी बात ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फ्रॉड हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, उस फ्रॉड से बचना भी बहुत जरूरी है। मनजोत सिंह कालरा, अगर वो बच्चा ये सुन रहा है तो वो बच्चा आपको खुद बता सकता है। मनजोत सिंह कालरा बच्चे का नाम है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया था पोर्चुगल का किसी एजेंट से जो चंडीगढ़ में है, 5 लाख रुपए का बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ, बच्चे को पोर्चुगल से डिपोर्ट कर दिया गया। बच्चा मेरे पास आया किसी के रेफरेंस से, सिर्फ और सिर्फ 46,000 रुपए में, बच्चे की एज है 22 साल, विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप, ठीक है जी, कोई हमने अरेंज नहीं कराई, ओनली होटल बुकिंग एंड टिकट बुकिंग पे 46,000 रुपए में हमने बच्चे को कनाडा का वीजा, टूरिस्ट वीजा लेकर दे दिया, जिसमें सारा खर्चा बच्चे ने किया। हाँ, इसमें मेरी कंपनी फीस भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कंपनी फीस चार्ज नहीं की, मैंने भी कंपनी फीस चार्ज किया है, बट सिर्फ और सिर्फ 46,000 रुपया टोटल बच्चे की एम्बेसी फीस मिला के, हर चीज मिला के बच्चे ने अपना कनाडा का टूरिस्ट वीजा अचीव कर लिया एट द एज ऑफ 22 साल की एज में। क्यों? फाइल अच्छे से लगाई, डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाए, रिप्रेजेंट केस को अच्छे से किया, तो एम्बेसी वीजा क्यों नहीं देगी? एम्बेसी भी वीजा देना चाहती है, सिर्फ वो ये देखती है कि जो एजेंट फाइल लगा रहा है वो आपके केस को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ बिल्कुल, बहुत देखिए ज़्यादा आपने, ज़रूरी ਹੁੰਦਾ है। मैं आपको एक बात जी के लिए काट रहा हूं, आपने एक वर्ड यूज किया एजेंट, जी एजेंट और कंसल्टेंट, वी आर कंसल्टेंट, मैं जी कंसल्ट करता हूं बच्चे को, मैं बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर काम करता हूं, मैं एजेंट वाला काम नहीं करता जी, बच्चे से पैसे पहले लेने हैं जी बाद में काम करना है, बिल्कुल ऐसा काम नहीं है। पहले उसकी प्रोफाइल के ऊपर काम किया जाएगा, मुझे उसे कंसल्ट करना है, मैंने उसको बच्चे को एजुकेशन पे जा रहा है तो मुझे उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाना है बिल्कुल ताकि वो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर जी सकते, तो वी आर कंसल्टेंट एक्चुअली। ਜੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ जी ਕਰ जी ਲਈਏ जी ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਫੰਡਸ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखिए, अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज में भी आज जो फीसिस हैं वो $16,000, $17,000, $18,000 तक भी जा रही है। कई कॉलेजेस में फीस $20,000 भी है, चॉइस करता है बच्चा कि उसे इसी कॉलेज में जाना है। जीआईसी $10,000 है, वो सबका ही सेम रहता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिफरेंस ये रहता है, अगर बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा है तो उसे 3 साल से लेके 4 साल तक की डिग्री करनी पड़ेगी। कॉलेज में बच्चा डिप्लोमा भी कर सकता है, सिर्फ फर्क रहता है कि उसको 2 साल की जगह 3 साल की फीस भरनी पड़ती है। जी आजकल यूनिवर्सिटीज भी ऐसे है जहां पे यूनिवर्सिटीज में फीस 14,000 है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज कहती हैं, यूनिवर्सिटीज भी वीजास को प्रमोट कर रही है, यूनिवर्सिटीज भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रही है कि बच्चे वहां आकर अपनी 4 साल या 3 साल की डिग्री कंप्लीट करें। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स में फर्क पड़ता है। ਜੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਦੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ जी ਚੁੱਕੀ ਹੈ, जी जी ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखिए, जादू नहीं है किसी जी तरह का, मैं बहुत सिंपल बताऊं, ये फाइलिंग है, जी ठीक है। फाइलिंग हम कैसी कर रहे हैं, मैं बार बार इस चीज के ऊपर क्यों जोर दे रहा हूं, फाइलिंग एसओपी, फाइलिंग एसओपी, क्योंकि बच्चा जो है ना वो खज्जल नहीं होना चाहिए, बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जब मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर के बाद हमें अभी तक चेकलिस्ट नहीं मिली कि आपने फाइलिंग के लिए क्या प्रिपेयर करना है। फर्स्ट डे में बच्चे को चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं फाइलिंग के लिए। सर वो कहते हैं सर हमें तो यही नहीं पता कि हमारा काउंसलर कौन है, आज हम एक से मिलते हैं, उस कंपनी
कंपनी में जाते हैं दूसरी मैडम होती है, फिर तीसरी होती है जी, फिर चौथी होती है। हमें तो यही नहीं पता हम फोन किसको करें या हम किससे बात करें। मेरी कंपनी में स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे पर्सनल नंबर पे, मेरे जो टीम का नंबर है उस नंबर पे वो कभी भी कॉल करेगा, उसका कॉल का आंसर किया जाएगा। अगर कॉल का आंसर नहीं किया गया, उसे बैक कॉल की जाएगी, व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि बच्चा बार बार कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है और उसे हम कुछ रिप्लाई ना करें, क्योंकि बच्चा इन्वेस्ट कर रहा है, बच्चे के पेरेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा कि हम कितने शिद्दत से उस बच्चे का काम कर रहे हैं, उस बच्चे की फाइल पे काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको हमारी कंपनी के लिए। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਫਾਈਲ ਹੈ ਲੱਗੂਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ 95 272 95372। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ 7 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਲਜਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, PR ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? देखिए, जब हम बच्चा बाहर जाता है जी। ना, वो ये देखता है उसके लिए सबसे आसान क्या है। जी ठीक है, क्योंकि जब बच्चा बाहर जाता है वो टेंशन में होता है, माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप से पता नहीं 2 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा। जैसा उसे वहां गाइड किया जाता है ना, बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेता है। वहां पर लोग कहते हैं कि जी आप कॉलेज छोड़ दो, हम आपको दूसरा कॉलेज दिलवा देंगे जहाँ फीस कम होगी। बट ये नहीं देखते PR के टाइम पे जब DLI चेंज होना है, जब PR के टाइम पे फाइल लगेगी, क्योंकि ऐसा मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। रिफ्यूजल लेटर पे बच्चे से एक ही क्वेश्चन किया गया कि आप आए इस DLI में थे, आपने DLI चेंज करके इस DLI में चले गए, आप हमें रिटर्न में एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम आई कि आपको DLI चेंज करना पड़ गया। बच्चे ने 4 एक्सप्लेनेशन दिए, 4 उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। फैमिली एक्सप्लेनेशन रिजेक्ट, उसके बाद स्टडी एक्सप्लेनेशन रिजेक्ट। वो कहते हैं स्टडी तो आप इंडिया से देख के आए थे, आपने कॉलेज देख लिया था, आपने SOP में लिखा था, सारा कुछ रिजेक्ट कर दिया गया। ये चूज बच्चे को, बच्चे ने ये भी बोल दिया कि मुझे काम नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं हमने आप काम को लिया, आपको बुलाया नहीं। उस बच्चे को बहुत मुश्किल आई, फिर हमने उसका केस लिया। वो किसी और एजेंट का केस था, बट वो PR के लिए फिर मेरे पास आया। उस बच्चे की हमने एक्सप्लेनेशन बनाई, उसके DLIs को हमने अच्छे से रिवील किया, उसकी SOP में रिवील किया, तब जाके उस बच्चे की फाइल जो है वो PR के लिए लगी। सो बहुत जरूरी है बच्चों की कि कॉलेज मत चेंज करे, क्योंकि बाद में जो प्रॉब्लम आती है ना वो सिर्फ बच्चा फेस करता है, वो माँ बाप नहीं फेस कर सकते, क्योंकि बच्चा वहां पर है। और फिर जब बच्चा इंडिया में फोन करता है, वो सारी टेंशन किसके ऊपर आती है? पेरेंट्स के ऊपर। सो शुरू में आप इजी करने के लिए बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल कर लेंगे अपने आप को, इसलिए कॉलेज मत चेंज कीजिए कभी भी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ मैरिड कपल है विदेश जाना चाहते हो, किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ जा सकते? देखिए, अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा में तो मैरिड कपल एक साथ पहले दिन ही फ्लाई करेंगे, हस्बैंड वाइफ अप टू 3 चिल्ड्रन। ठीक है जी, सबका एक साथ वीजा लगेगा। प्राइमरी एप्लीकेंट का स्टडी वीजा लगेगा, सेकेंडरी एप्लीकेंट का स्पाउस वीजा लगेगा, जिसे बोलते हैं ओपन स्पाउस वर्क परमिट। ठीक है जी, वो लगेगा। बच्चों का एज ग्रुप के हिसाब से टूरिस्ट वीजा या स्टडी वीजा ग्रांट किया जाएगा। सो मेरे पास ऐसी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज है जिनको बोला जाता है कॉन्करेंट केसेस। इस केस को बोला जाता है कॉन्करेंट केस। अगर पूरी फैमिली इकट्ठा स्टडी वीजा पे माइग्रेट होना चाहती है तो कनाडा में ये भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार हमसे मिलना पड़ेगा, पूरी प्रोफाइल समझनी पड़ेगी, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? ਕੀ ਕੀ जो ਚੀਜ਼ਾਂ स्टूडेंट ਧਿਆਨ- वीजा का है
जी सेम जो स्टूडेंट वीजा का है, बच्चे के 6 बैंड होने चाहिए, बच्चे की एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे के पास आइल्स होना चाहिए, सारा क्राइटेरिया वो है। सिर्फ मुझे समझना है इस प्रोफाइल को कि हम जो साथ में प्रोफाइल्स लगाएंगे वो हम कैसे और अच्छे से उसको एम्बेसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि वन शॉट में वीजा आ जाए। मुझे रिफ्यूजल बिल्कुल नहीं चाहिए किसी बच्चे का। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇजेस ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਫਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ पैकेज मुहैया करवाए हाँ जाते जी, हैं। मेरी तरफ से ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया जी। जाता जी किसी बच्चे को। मैं तो एक सिंपल सवाल पूछता हूँ सारे बच्चों से, उनके पेरेंट्स से। जी। कनाडा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है जी आपने जो फीस भेजनी है वो माँ बाप के अकाउंट से जा सकती है, जी ठीक है जी। तो उसमें मेरे को तो ये बताओ पैकेज होगा कैसे? पहली बात, जी पैकेज होगा वो प्राइवेट कॉलेज में होगा जिसकी फीस नहीं भरी जाएगी। आपको जानकारी चाहिए मेरे पास आ जाना, मैं आपको रिटर्न में दिखा दूंगा ये सारी चीजें। फीस नहीं भरी जाएगी, ठीक है जी। मुझे ये बताओ आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को बाईपास कैसे करोगे? उन्होंने कह दिया कि जी सिर्फ फ्लाईवायर के थ्रू या आप डायरेक्ट अपने अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में भेज सकते हो पेमेंट, ठीक है। तो कोई एजेंट आपकी पेमेंट कैसे बाहर भेज सकता है? ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ठीक है जी। पैकेज सिस्टम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होंगे जिनमें वर्क परमिट नहीं होता। सरकारी कॉलेज में कभी पैकेज सिस्टम हो ही नहीं सकता। आपको कोई कहता है कि वो सरकारी कॉलेज में पैकेज सिस्टम करेगा, मैं कहता हूं आप कर लीजिए, वहां पर बेधड़क होकर पैकेज सिस्टम कीजिएगा। बट अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में फीस आफ्टर वीजा मैं भी कर दूंगा आपका। मेरे पास भी अच्छे कॉलेजेस है, मैं भी करूंगा, पर मैं ये बोल के नहीं करूंगा कि मैंने फीस भर दिया। फीस हमेशा बाद में जाती है, फीस नहीं भरी जाती, ठीक है। तो ये एक बच्चों को समझना है इस चीज को कि वो पैकेज सिस्टम, फीस आफ्टर वीजा का जो लालच आपको दिया जा रहा है, वो लालच को खत्म करके ना आप उस चीज पे कंसंट्रेट करो कि आपने कनाडा जाकर करना क्या है। ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। हो सकता है, और इसी को हमने देखा है इंटरनेट पे। जितने भी हम वीडियोस आजकल देखते हैं कि जी फ्रॉड हो गया, वो सारे पैकेज सिस्टम के अंदर ही हमने देखे हैं। हमने कभी नहीं देखा कि सरकारी कॉलेज ने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया हो। प्राइवेट कॉलेजेस पैकेज में ही हम फ्रॉड देखते हैं सिर्फ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ रही हैं? मैम मुझे एक्चुअली, मैं सच बताऊं, मेरी अभी तक ऐसी किसी से बात नहीं हुई है कि काम नहीं मिल रहा है। काम मैम हम किसे कहते हैं? पहले तो हम ये समझे हम काम कहते किसे हैं। हमें 20 घंटे काम मिलना है, हफ्ते में 20 घंटे करने हैं। हो सकता है दिन में 3 घंटे मिले, 4 घंटे मिले। हमें कोई फुल टाइम काम थोड़ी दे रहा है वहां पे। हमें क्या पता बर्गर शॉप पे काम करना पड़े, फ्यूल पंप पे काम करना पड़े, ठीक है, कोई ट्रक की सर्विसिंग का काम करना पड़े, हो सकता है पैकेजिंग का काम करना पड़े। मेरे अंदर वो कहते हैं ना गट्स होने चाहिए कि मैं वो काम कनाडा में जाके कर सकूं। हम देखते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, अच्छा बैंक में मिल जाए, अच्छा वहां पर मैनेजर की जॉब मिल जाए, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आपको स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ेगा। जाते ही हो सकता है फ्यूल स्टेशन पे ही काम करना पड़े, 20 घंटे वही काम मिले। काम की कनाडा में कोई कमी नहीं है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ।